seen both the legends, Sunil Gavaskar and Kapil Dev, were dancing to show their happiness, to show their love. वेलकम व्यूवर्स टू दी वेरी एक्साइटिंग शो टुडे। आज हमारे साथ संजीव सिन्हा जी हैं और संजीव जी रांची से जुड़े हैं, मैं आज दिल्ली से जुड़ा हूं और आज हम लोग इतने खुश हैं, इतने अंदर से खुश हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं व्यूवर्स। आपके तरह हम लोग सब खुश हैं। कल इसी समय लगभग अराउंड 24 घंटा पहले हम अपने हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर 12 सालों के बाद अपने हाथों में रोहित शर्मा, डिजर्विंग कैप्टन, जो पिछले 3 सालों से सारे आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ 1 या 2 मैच ही हारा है, उसके बाद ही बेचारे को कप नहीं मिल रहा था। संजीव सिन्हा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। चक दे फट्टे, क्या हम लोग ने जीत दर्ज की है। वाह, फाड़ दिया। Thank you, Sarad, and many congratulations to all the viewers all over the world. My sweet and lovely cricket team, my legends like Sunil Gavaskar and Kapil Dev, like Harbhajan Singh and all the coming and previous stars. It was a day for Indian cricket when India has played like a team. Every moment of the match of final was crucial, and on regular intervals Indians has implemented his own potential and executed all the good shots, executed all the good bowling, and after all the result was in our favor. Now मैं आपको कुछ चीजों से अवगत कराऊं। आपने पिछले कई एक एपिसोड में इस बारे में बात की है कि टॉस हमारे खिलाफ जाता है, फिर कल से टॉस हमारे खिलाफ गया। मैंने आपको कहा था कि टॉस बस एक चांस है कि आप साहब टॉस जीते ना जीते, लेकिन मैच पूरी 100 ओवर चलती है और जब तक उस पे विनर लूजर का बोर्ड नहीं टंग जाता, कोई भी व्यक्ति टॉस को उतनी अहमियत नहीं करता। ये जो प्लेइंग कंडीशन है, ये अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक टॉस का कोई रोल था नहीं। तो ये पक्का था कि जो भी टीम लॉन्ग डेप्थ बैटिंग के साथ खेलेगी और थोड़ी बॉलिंग में किलिंग इंस्टिंक्ट शो करेंगे, शार्पनेस शो करेंगे, वो टीम इस विकेट पे, इस एटमॉस्फेयर में अच्छा करेगी, जो इंडिया ने किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने अच्छा नहीं किया। न्यूजीलैंड ने अच्छा किया, कुछ मौके पे हमने उन्हें करीबन 40-50 रन ज्यादा बनाने का मौका दिया, अदरवाइज इनको और 40 रन पे कम पे रोक सकते थे हम। चलिए, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ओवरऑल इट वाज ए ग्रेट एंड ग्रैंड शो बाय द cricket stars of our country. One thing I just want to mention, we will discuss it after our show or maybe in the last session of the show, that it was organized by the Pakistan Cricket Board. And very sorry to say, it is not a sportsmanship of Pakistan Cricket Board that no official person was there to host the prize distribution. This is not a culture of cricket. This is not. I think ICC should think about this, that these countries should be uplifted by the mentality or by anything. If I am organizing a tournament on world level, how it can be possible that my president, my secretary, my cricket board will not be on the presentation dais? It was a question mark from my side to Pakistan Cricket. I don't think anyone will support. Even Pakistanis were not in their favor. And I have seen some
clips of video in which the great Pakistani were saying that it was a बहुत खराब मोमेंट था जब पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा उस स्टेज पर खड़ा नहीं था। इस बात को बहुत क्वेश्चन मार्क करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज से सीख ले कि आप खेल को खेल ही रहने दें। वो थोड़ा उससे ऊपर चले जा रहे हैं। आई थिंक कभी ऐसा मौका इंडिया को आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा बोर्ड प्रेसिडेंट और हमारी पूरी टीम, ऑर्गेनाइजिंग टीम, ऑफिशियल टीम इससे बाहर रहेगी। आई थिंक दिस इज नॉट ए क्रिकेट, शरद। एंड माय ऑल गुड विशेस टू अपकमिंग स्टार्स ऑफ इंडिया, the boys who are just 12-13 years old. They'll become a champion after this. It was a mega show because our legends like Kapil Dev and Sunil Gavaskar and every legend was dancing. I have never seen Kapil Paji dance in my young age, but I am very fortunate that I have seen both the legends, Sunil Gavaskar and Kapil Dev, were dancing to show their happiness, to show their love, to show their devotion to the game of our beautiful cricket team. Thank you so much. Yes. Congratulations to all them. Congratulations to everybody. So yes, सुनील गावस्कर जी ने डांस जब किया, मैं वो देख रहा था वो शो, और कपिल देव ऑलवेज हैज अ वेरी हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर सुनील गावस्कर सर। और जैसे ही गावस्कर ने डांस किया, फिर श्वेता सिंह ने, जो अपने पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा रही हैं, श्वेता सिंह आज तक चैनल पर उन्होंने बोला था कपिल देव की पाजी आप ही कर दीजिए, तो पाजी भी कर गया। पाजी तो भाई एकदम चंडीगढ़ के हैं और हरियाणवी हैं, हरियाणा हरी भांगड़े का समय है, होली का समय है, पाजी ने भांगड़ा दिखलाया। हैट्स ऑफ टू कपिल पाजी, सुनील गावस्कर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, यू गेव अस सो मेनी गुड मेमोरी फ्रॉम उस समय से आप लोग दे रहे हैं। इंडियन क्रिकेट आप लोग के कंधों पर ही है, आप लोग पिलर हैं भारत के क्रिकेट के। सो हैविंग सेड दैट, संजीव जी मैच का एनालिसिस कीजिए। टॉस जीतना, न्यूजीलैंड का बैटिंग लेना, और न्यूजीलैंड अब फिर हमारे फील्डिंग के लैप्स के कारण उसने फाइनल के हिसाब से अच्छा खासा रन बना दिया था। टू चेज एनीथिंग 250 ऑन अ ट्रैक जहाँ पे बॉल स्लो होएगी सेकेंड इनिंग में, इट वॉज नॉट अ वेरी स्मॉल टारगेट। अगर एक बैटिंग पिच पे ये 300 प्लस टाइप का स्कोर है और उस पे हमारे बंदों ने खेला, आप इसको एनालिसिस कीजिए, हाउ डू यू सी इट? शरद भाई, मैं थोड़ी वो सारी चीजें जो क्रिकेट पे हुई कल, वो पूरी दुनिया ने देखा, और हम उसी पे बात करते रहेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आज मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो आप और हम महसूस कर रहे थे, जो 140 करोड़ की जनता महसूस कर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विनिंग द टॉस एंड नॉट चेजिंग, आई थिंक इट्स अ डिमेरिट ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। अगर मैं कहता तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं चेज करता, आपने बॉलिंग नहीं की, इट शोज दैट यू आर वेरी वीक इन योर स्टडीज, इन योर स्ट्रेटजी। आई थिंक यू आर वेरी वेरी वीक इन योर बैटिंग। यू नो दैट कि मेरी बैटिंग में डेप्थ नहीं है, हम रन चेज नहीं कर सकते हैं। Chasing was more easier than batting first. And after winning toss, how Satner was convinced to go for batting first. I don't think it was a good move. It was a bad move. New Zealand should think about again and again. And I think जितने भी legend cricketer होंगे मेरी बात से सहमत होंगे कि इस विकेट पे जब मैच आपकी बैटिंग में डेप्थ होता है, आप अपनी टीम के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं, आप ट्रायल एंड एरर पे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करते हैं, एक कम स्कोर बनाते हैं और अपने 3, 4, 5 बैट्समैन के साथ जाके बैटिंग करके मैच को स्विप करते हैं। ये चीज की कमी मुझे न्यूजीलैंड के अंदर नजर आता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंडियन टीम ने मन बना रखा था, हमको बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है, डजंट मैटर, जो भी मिलेगा मैं पूरे शिद्दत से बैटिंग करूंगा, पूरे शिद्दत से बॉलिंग करूंगा। एंड आफ्टर लूजिंग टॉस नो वन वाज हेजिटेटेड टू फील्ड फर्स्ट। आपने देखा होगा कैच हमारे छूटे,
हम उनको और 50 रन कम पे आउट कर सकते थे, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ गेम। ये हम लोगों को एक टारगेट दे रहा था, और बाद के 50 रन ड्रेसवेल ने जो बनाए, आई थिंक इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडियन टीम अदरवाइज। और उनके जो फील्डिंग की बारी आई तो उन्होंने 10-20 रन हमारे रोक दिए। एक इतना सुंदर कैच पकड़ा गया जो नहीं सोचा जा सकता था। वो फिलिप तो लगता है मुझे वो पता नहीं क्या खाकर आता है, वो जब कहीं जाता बॉल उसको पीछा करती है या वो बॉल को पीछा करता है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि जो टीम बहुत कॉन्फिडेंट होती है वो ऑलवेज चेस करना चाहती है। न्यूजीलैंड टीम वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। दे केम हियर आफ्टर डिफीटिंग साउथ अफ्रीका, बिकॉज साउथ अफ्रीकन के साथ भी वही प्रॉब्लम है, अपने टीम के स्ट्रेंथ को बहुत समझते नहीं है वो। और वो जो पैनिक मोमेंट जब आता है, जब करंट सिचुएशन आता है तो ब्रेक कर जाते हैं। द सेम थिंग हैपेंड विद न्यूजीलैंड। जब हमारा 50 रन बचा हुआ था और हमारे कुछ बैट्समैन आउट हो गए थे, आपने देखा होगा हार्दिक के आने के बाद में वो टीम थोड़ा जल्दी उसको एक्सपोज करना चाहती थी। एंड हार्दिक, जडेजा एंड केएल राहुल ने कितना स्मार्ट बैटिंग किया, इतना स्मार्ट बैटिंग किया कि उसको मैच को ढकेल करके 41वें ओवर से 49वें ओवर तक ले गए। वो ये पूरी जो क्रिकेट थी कल की, वो लास्ट के जो 15 ओवर थे, 90 बॉल, और अपने पास में 90-92 रन बनाने थे। इट वॉज नॉट ए पार्टनरशिप गेम, इट वॉज जस्ट टू पुश द गेम टिल द एंड, दैट बॉल टू बॉल रन बनेगा तो बैट्समैन खेलेगा तो उसका बैट चलेगा। इट वॉज ए परफेक्ट प्लानिंग फॉर द फिनिशिंग ऑफ दिस मैच। आई थिंक इंडियन टीम इस मामले में बहुत रिच है। पूरे टूर्नामेंट में जब जब इंडिया ने चेस किया, आप देखेंगे कोई एक बैट्समैन नहीं खेला, 2-3 स्लॉट में खेला। जब खेला एक ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित ने करके दे दिया, उसके बाद विराट कोहली ऐसा बैट्समैन जब शुरू में आउट हो गया, थोड़ा सा छोटा पार्टनरशिप लेकर के ये आए, श्रेयस आए। उसके बाद श्रेयस के जाने के बाद में फिर एक छोटा सा पार्टनरशिप लेकर के अक्षर और ये चले। तो ये जो छोटे छोटे पार्टनरशिप है, एक अच्छा 90 रन का 100 रन का पार्टनरशिप आपको ओपन में मिल जाता है 10-12 ओवर में, और जब आप छोटे छोटे पार्टनरशिप करते हो तो वो स्कोर बोर्ड जो है बहुत तेज से मूव करता रहता है, वो समझ में नहीं आता है। और प्रेशर, जो टाइटनेस है, वो जो बॉल का जो रफनेस है, वो सब आप यूज करते हैं। इट वॉज शोइंग दैट कि हाँ, धीरे धीरे हम कदम से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये छोटे छोटे पार्टनरशिप, ये टेक्निकल पार्टनरशिप, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, उस पर हम अपने आप को खरे उतारते चले गए। द गेम वॉज वेल प्लान्ड बाय एवरीवन, बाय द मैनेजमेंट। आई सैल्यूट द टीम मैनेजमेंट, हेड कोच, दैट नो वन वॉज इन हरी। गौतम को आपने देखा, बिल्कुल शांत थे, उनको पता था कि जो नीचे के बैट्समैन आ रहे हैं, दे विल प्ले देयर रोल टू प्ले 20-25 runs, 30 runs, 50 runs, and Hardik was looking so confident, and he played like a tiger. He kills everyone in this tournament, and when he struck the ball, उसने कभी सर उठा के नहीं देखा बॉल कहां जा रही। उसको पता था कि द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो बॉल में हुआ वो थर्ड ईयर पे, सेकंड ईयर पे, फर्स्ट ईयर पे ही जाए। So this was the difference between Indian team and any other team in this tournament. I think as a cricketer, the self-belief and the team belief, the confidence of the team is the most sweetest ingredients of victory, and we have done it. ये बातें शायद आपको दूसरे किसी चैनल पे किसने की नहीं जी पता। बैटिंग तो हो रही है, बॉलिंग हो रही है, फील्डिंग हो रही है, वो हुजूम है, वो शोर शराबा सब है, पर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो ये थे कि टीम इंडिया कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कंगारुओं से, कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी पाकिस्तानियों से, कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी न्यूजीलैंड से दोनों बार। और जब फाइनल की बारी आई तो इंडिया ने अपने कॉन्फिडेंस को शो किया। वो जो डेप्थ था बैटिंग का 8 नंबर तक, वो शो किया। और I believe that 2-3 players are going to
fixed a very top level in Indian cricket. The batsman, wicketkeeper like KL Rahul, the bowler and all-rounder like Hardik Pandya, Varun Chakravarti, Akshar Patel, Shreyas Iyer, Subman Gill. नो वन, मेरे पास शब्द नहीं है इसके बाद. कुलदीप यादव, द टू ब्रिलियंट विकेट्स, अजय जडेजा. मतलब आप ये देखिए साहब कि समी ऐसा बॉलर जो बिल्कुल फेल कर रहा था, उसने भी क्रूशियल मोमेंट पे आके एक स्लोअर बॉल पे एक विकेट निकाल ली, जो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी उस वक्त के लिए. तो टीम गेम ऐसी होती है जैसी कल टीम इंडिया ने खेली. बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हम गलती करते हैं, हम सीखते हैं, अपने सीखे हुए चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं. This was the champions trial. This was the champions trial. तो अभी आपने बैटिंग की शुरुआत की बात है, तो बैटिंग का थोड़ा और बात करना है. क्या ओपनिंग बैटिंग हुआ, 100 रन इन 18 ओवर्स, एंड रोहित एंड गिल ने जो स्टार्ट दिया टू चेज 250, जिसमें 100 बना देना इज लाइक मैच एकदम लिटरली अपने पॉकेट में डाल दिया था. वो तो बीच में 1-2 विकेट गिर गया, वरना तो हम तो अभी 10 ओवर पहले जीतना था ये मैच. जिस तरह से रोहित, कोई डाउट ही नहीं है. आप जो कह रहे हैं ये पूरा हिंदुस्तान और पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कह रहा है कि द वे द जीनियस रोहित शर्मा वाज हिटिंग द बॉल यस्टरडे इवनिंग, ओहो क्या आवाज निकल रही थी बैट से. ऐसा लगता था बैट टक से आवाज की और बॉल ऊपर आसमान की तरफ चलता था. ऐसा लगता था किसी ने रॉकेट छोड़ दिया मंगल ग्रह के लिए. और एवरीवेयर जो 9 ओवर 10 ओवर जो रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, he killed all the expectation of ये कीवीज. आप देखिए 9-10वें ओवर में हमारा 90-99 रन के आसपास हो चुका था. 9 रन का जो रेट था वो पता ही नहीं चला कब आ गया. रोहित शर्मा के रन्स कब आगे पता ही नहीं चले. और आप वो तो थोड़ा सा ये मैं मानता हूं कि शुभमन चले गए, अदरवाइज रोहित के जाने के बाद अगर विराट और शुभमन के बीच जो पार्टनरशिप हो रही होती तो जितना स्कोर इन लोगों ने बना दिया था, आई थिंक 30-35 ओवर वाज मोर देन इनफ टू फिनिश द मैच. बट कोहली के जाने से थोड़ा जो एक चेक हम लोग महसूस किए कि भाई इट्स अ फाइनल मैच, सो वी हैव टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स, स्लो जाओ, स्टडी जाओ, से योर स्टेटमेंट दैट यस आई एम द विनर. सो ये जो प्रेशर था सिर्फ इतना ही था, और इसीलिए आपने 35 से 45 ओवर और 46 ओवर 48 ओवर का मैच देखा. अदरवाइज आई थिंक 35 ओवर्स वाज मोर देन इनफ. तो थोड़ा न्यूजीलैंड का बैटिंग के बारे में बोलिए. रचिन को मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, जो थोड़ा सा इंडियंस लोग को ठीक नहीं लगा, क्योंकि वरुण वाज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, यंग कैंडिडेट रिलेटिवली कंपेयर्ड टू रचिन, इवन दो रचिन इज अ ग्रेट प्लेयर इन मेकिंग. लेकिन तो न्यूजीलैंड का थोड़ा बैटिंग का इस मैच में क्या आउटस्टैंडिंग आपको लगा और क्या गलतियां दिखी? मैन ऑफ द सीरीज राचिन रविंद्र को देने का सिर्फ मेरे नजर में एक कारण है, वो जो 200 उसने बनाए, और वो 100 उस सेमीफाइनल का जो बहुत बड़ा असर था वो दिखा मुझे. कल भी रचिन ने ठीक ठाक बैटिंग शुरू की थी, बट आफ्टर ऑल द प्रेशर वाज देयर. अभी उनको बहुत टाइम लगेगा इस बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस करना, और टीम विनिंग परफॉर्मेंस करने में थोड़ा डिफरेंस है. तो वो जो अपने कंधे पे जो बोझ लेते हैं ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा या नीचे केएल राहुल, ये जो बोझ लेते हैं ना, ये बोझ उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. और उस प्रेशर, ही इज अ गुड प्लेयर, बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट ए कंप्लीट प्लेयर. नाउ ऑन दैट स्टेज, अब मैं बाकी नीचे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस लेवल की बात कर रहा हूँ जिस लेवल पे कल खेल रहे थे. उस लेवल पे उनको अभी और थोड़ा और मैच्योरिटी की जरूरत है, थोड़ा एक्सपोजर की जरूरत है. टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट रचिन, बट एट द सेम टाइम रचिन इज अ गुड प्लेयर फॉर फ्यूचर फॉर न्यूजीलैंड. और बैटिंग आप देखिए न्यूजीलैंड की बैटिंग को, तो ऐसे दौड़ती है फिर रुकती है, फिर दौड़ती है फिर रुकती है, फिर दौड़ती है. ये हर इंटरवल में आपने महसूस किया होगा ये टीम बहुत ऊपर नहीं जाएगी. 130 पहुंचने में हालत खराब हो गई, फिर वहां से 10 ओवर उसने पिक किया लास्ट के, तो वो टीम को 251 के आसपास पहुंचा सकती. अगर कंटिन्यूएशन होता उनकी बैटिंग, अगर
मेरे हिसाब से मैं अगर थोड़ा आकलन करूं इसको, तो अगर विलियमसन बैटिंग कर रहे होते, पुराने विलियमसन, तो मैं आपको बता देता हूँ ये मैच वो इंडिया से खींच करके ले जाते और स्कोर उनका 280-290 के आसपास रहता और आप स्ट्रगल कर रहे होते। ये लैकनेस न्यूजीलैंड टीम बहुत अच्छी तरीके से जानती है और शायद ये वजह थी कि न्यूजीलैंड टीम हार गई। ब्रेसवेल ने खराब बैटिंग नहीं करी थी, सैंटनर कोशिश कर रहे थे, बट जो बीच का जो पीरियड था, मैंने आपसे इसके पहले वाले एपिसोड में कहा था कि मैच तो 12वें ओवर से शुरू होकर के 35-40 ओवर तक चलता है। वो जो बीच का पीरियड है ना, वो हमारे यहाँ वही डिफरेंस क्रिएट हुआ जो हमारे प्लेयर और उनके प्लेयर में, ये बैटिंग डेप्थ का ही कमाल था। आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी कन्विंस्ड विद दिस परफॉर्मेंस कि भाई साहब हमारे बीच के एक बल्लेबाज और खेल गए होते जो छोटी छोटी 3-4 पार्टनरशिप कर लिए होते 20-20, 25-25 रन की, तो शायद ये मैच का स्टोरी भी कुछ और होता। लेकिन फेल किए ओनली बिकॉज ऑफ विलियमसन। मैं मानता हूँ विलियमसन बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, उनको ये बोझ अपने सर पे लेना चाहिए था। अगर अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, जब तक आपके पैर चल रहे हैं तब तक वो टीम भी चल रही होती है। सो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की बैटिंग में थोड़ा लड़खड़ाहट था, जिसका फायदा हम लोगों ने उठाया और हम लोगों ने अपनी बैटिंग को पूरा एंजॉय किया है। कोहली के आउट होने के बाद इंडियंस थोड़े नर्वस हो गए थे, बट द वे श्रेयस एंड अक्षर ने उसको प्ले किया, संभाला, उठाया, और उसके बाद जो नीचे हमारे राहुल साहब आते हैं ना, वो इतना बड़ा छोटा, कहते हैं ना छोटा पैकेट है ये बम वाला। तो राहुल ऐसे बैट्समैन हैं तो अंदर ही अंदर बातों को रखते हैं, अपने मैच को खींच कर भेज जाते हैं। वो लगातार 3-4 मैचों में दिखाया। राहुल से मुझे एक बात याद आई शुरू में, लाइक ऑल द अदर पीपल, मैं भी इसमें इस भावना में बह गया था कि पंत के साथ अन्याय हुआ है, राहुल को खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ही बीसीसीआई पता नहीं क्या प्रेशर में है। लेकिन आप कंसिस्टेंटली शुरू से ही बोल रहे हैं कि राहुल इज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर, क्योंकि राहुल से हम लोग का एक्सपेक्टेशन 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट पहले बहुत था और वो बहुत बुरी तरह हम लोग को निराश किए, खासकर जो ओडीआई वाला में था। ही वॉज इन अ फॉर्म, तो हम लोग को थोड़ा सा वो फीलिंग था। लेकिन आप उस पर जिस तरह से विश्वास किए फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड वी आर डिस्कसिंग, एंड राहुल रियली पेड अस बैक। बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही कूल प्लेयर है वो। ही पूरे शरीर में आप देखेंगे, जो भी क्रिकेट जानते हैं अच्छे से, उनको ये पता है कि क्रिकेट में एक स्पाइन होता है। जैसे शरीर में स्पाइन होता है वैसे एक स्पाइन होता है। तो हेड का काम कुछ और है, नेक का काम कुछ और है, पैर का काम कुछ और, बट स्पाइन जो है ना, वो स्पाइन बहुत स्ट्रांग और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ राहुल। राहुल विकेट कीपर है, द बेस्ट साइट ऑफ बॉल बिफोर गोइंग टू बैट। जब आप पहले विकेट कीपिंग कर चुके होते हैं तो आपको उस विकेट का अच्छा खासा ज्ञान हो चुका होता है। सो एंड राहुल जो बैटिंग करने आते हैं और ऋषभ पंत जो बैटिंग करने आते हैं, दोनों में फर्क है। ऋषभ पंत 2 नंबर बैटिंग करने आते हैं अर्लियर, राहुल 5वें-6ठे नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। राहुल इस अनुभव का जो विकेट कीपिंग में उनको मिलता है, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह उसको यूज करते हैं। एंड इन ए क्लास जो बैटिंग उनके पास है, जो बैटिंग डेप्थ उनके पास है, आई थिंक राहुल विल सर्व इंडियन टीम फॉर ए वेरी 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 लॉन्ग। बहुत जल्दी वो छोड़ने वाले में से नहीं है और मुझे लगता है आने वाले समय में आप देखेंगे राहुल को किसी बड़ी जिम्मेवारी को निभाते। हाँ भाई, ससुराल से भी स्ट्रांग है। भगवान करे और स्ट्रांग बने। रियली स्ट्रांग है भाई। हमारे सुनील शेट्टी, इंडियन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हम लोग उनको बोलते थे। ही वाज लाइक शरद मैं आपको एक चीज बताऊं, जब राहुल आते हैं ग्राउंड में, जब उनकी बारी आती है, यू विल फील इनसाइड दैट यस वी आर इन सेफ हैंड्स। अगर आपकी ये फीलिंग आती है तो सिर्फ ये लफ्जों में नहीं है, ये आपके उस अनुभव का कारण है कि आपको वो क्यों फीलिंग आती है कि राहुल आए हैं तो ये खड़े रहेंगे। और पिछले 3-4 मैचों में आप देख लीजिए,
3-4 मैचों में देख लिए, बंदा तब तक खड़ा रहा जब तक कि बोर्ड पे उसने विनर का साइन नहीं टांगा। तो इट्स मास्टर स्ट्रोक्स। नहीं, मैं इस पे एक बहुत बड़ा क्रेडिट गौतम गंभीर को दूंगा कि 2 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज जब उसने हारा तो हम लोग सब लोग बहुत निराश हुए थे। मैंने कि वो हार, ऑस्ट्रेलिया में आप एक फर्स्ट टेस्ट जीत कर फिर सीरीज हार गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आप कभी भी पहला टेस्ट नहीं जीतते हैं, और वहां से आप इस तरह से हारना, और इंडिया में आके न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, बहुत ही वो अपमानजनक। हम लोग, अभी वक्त लगेगा, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। लेकिन गौतम गंभीर ने जो 4 स्पिनर, जिसमें से 2 ऑलराउंडर एंड 2 स्पिनर को खिलाया, और 8वें तक बैटिंग का जो डेप्थ दिया, ये हम लोग ये पूरा डेप्थ के चलते जीते। क्या मास्टर स्ट्रेटजी। आप इस पे कुछ बोलिए। हर हेड कोच अपने स्टाइल में क्रिकेट खिलाता है। आप सबके कैरेक्टर को थोड़ा सा चेक कीजिए। राहुल द्रविड़ का क्रिकेटर होना और जो उनका कैरेक्टर था वो, उसके बाद रवि शास्त्री के बारे में थोड़ा देखें। रवि शास्त्री का जो कैरेक्टर था, उनका जो प्लेइंग एटीट्यूड था वो, उसके पहले कभी हमारे कोच अंशुमन गायकवाड़ भी हुआ करते थे। वनडे टीम की बात करें तो वनडे और टी20 की कुछ रूपरेखा देखते हैं। गौतम गंभीर अचानक उठते हैं दिल्ली से और केकेआर के कोच बन जाते हैं। उसके पहले दिल्ली के कोच रहते हैं, दिल्ली से छोड़ के आते हैं। ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना इंडिया में, और गौतम इनिशिएटिव लेकर के कुछ चेंजेस, कुछ डेप्थ जो उनका अनुभव रहा है, उसको वो बड़े तरीके से शामिल करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, मेरे कारण हार गया, मेरी स्ट्रेटजी गलत थी। These words you can hear from गौतम गंभीर। तो दिस वाज द क्वालिटी गौतम गंभीर कि साहब मैंने किया है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि मैंने किया है, और अगर जीता है तो ये मेरी जिम्मेवारी है, मैंने किया है। ये जो इनिशिएटिव होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है पूरे टीम पे एक अम्ब्रेला के शेप अप में आ जाता है कि साहब मेरा कोच हम पे इतना बिलीव आखिर क्यों कर रहा है। तो कहता चल चल खेलते हैं, तुम फेल भी जाओगे ना कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। एंड ही हैज डन इट। शुभमन गिल पहले मैच के बाद लगातार फेल रहे हैं। हम और आप कल्पना कर रहे थे कि शायद यहाँ पे लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, बट ही नेवर चेंज्ड, बिकॉज विनिंग स्ट्रिप पे जो रेल दौड़ रही है उसको धीरे नहीं करना है, उसको स्पीड को कम नहीं करना है, उसके चक्कों को नहीं बदलना है। ये भी एक थ्योरी है, जो विनिंग स्ट्रिप पे जो कोई टीम जीत रही है उसको नहीं चेंज करना है। आई थिंक गौतम, उनके सारे सपोर्ट स्टाफ और मौकल जो बॉलिंग के कोच है हमारे, इन लोगों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है भाई, और इस कॉम्बिनेशन ने इंडियन टीम को विक्ट्री के रास्ते पर डाला है। 6 के 6 ये आसान नहीं था। देखिए, मौकन के आने के बाद आप बॉलिंग में काफी चेंजेस महसूस किए हैं कि साहब मौकन के आने के बाद वो सेंस जो है बॉलिंग का वो बड़ा हो गया। तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि जो टीम मैनेजिंग जो है वो गौतम गंभीर बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, और उनको अपने सारे लोगों का साथ भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। सो शरद, आई थिंक इंडिया बहुत अच्छे हाथों में है। बहुत लंबा अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि साहब कैसे क्रिकेट को और खेलते हैं, खिलाते हैं। मेरे हिसाब से बैटिंग में भी जो डेप्थ आया हो, बैटिंग का डेप्थ और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में गौतम ने काफी काम किया है, और आप देखेंगे बड़े क्रुशियल मोमेंट्स पे थोड़े बहुत फेर बदल के साथ में वो इंडियन टीम को एक अच्छा फीड देके जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी योजना है जो गौतम की तरफ से देखने के लिए मिली है, और इंडियन टीम मैनेजमेंट की तरफ से देखने के लिए मिली है। सब लोगों ने सराहा है, हमारी पूरी कमेंट्री टीम ने सराहा है, जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के या इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, उन सब लोगों ने सराहा है। कपिल पाजी ने भी सराहा है कि भाई गौतम बहुत अच्छी टीम को लेके चल रहे हैं साथ में, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सराहा कि भाई हमारा किसी के साथ में कोई मनमुटाव नहीं है, हम तो यहाँ बैठे हैं सिर्फ
भारत देश की सेवा करने के लिए और सेवा कर रहे हैं।